Good afternoon, dear students. The topic of our today lesson is Why Boys Fail in College. This essay is written by Herbert Edwin Hawkes, who is considered as a renowned mathematician and a famous educator. And in his book, he has described various reasons that why students, it includes boys and girls, usually fail in college. And he enumerates various reasons for this. So let us read out the essay. Of the boys who do not reach their natural academic boundary, remember the word is academic, आप इसको academic नहीं बोलेंगे. Of the boys who do not reach their natural academic boundary, वो लड़के जो अपनी academic boundary, अपनी academic limit, अपना कोर्स वर्क जो कॉलेज का नहीं कर पाते हैं during the course of their college career, but who fail to get through, लेकिन वो जो उसको पास नहीं कर पाते हैं. Now the word is get through, who are unable to pass, who are flunked out, who fail, जो उसको पास नहीं कर पाते. There are two main classes, उनके दो ग्रुप्स हैं, those who try and those who do not try. Many boys attempt seriously to make good and really have the native ability to do so. अब जो क्लासिफिकेशन में बताई है उसमें एक वो लोग हैं who try and other is who do not put an effort. अब वो लोग जो कोशिश करते हैं who are serious and really have the native ability, और उनके अंदर ये inherent talent है, उनके अंदर ये काबिलियत मौजूद है कि वो एग्ज़ाम को पास कर सकें, but find it almost impossible to sit at a desk and concentrate on the task assigned. उनके लिए मुश्किल क्या है? उनके लिए focus problem है, concentration problem है. They can't focus for a longer period of time. They cannot devote a longer period of their time towards their studies. That is why they fail. There is the boy who sit down to open his book, but before starting on his work says to himself, I think that I had better sharpen my pencil. अब एग्जाम्पल उन्हीं लड़कों की बता रहा है कि जब वो पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहला ख्याल जो उनके माइंड में आता है that they should sharpen their pencil, they should arrange their belongings, it needs it badly, and when he has sharpened it, he observes that all his pencils need sharpening. एक काम करने के बाद दूसरा काम याद आता है कि पहले इस चीज़ को भी मैं अरेंज कर लूँ, and so on until his time is gone and nothing has been done. यहाँ तक कि वो अपनी पेंसिल ही शार्प करता रहता है और उसका टाइम सारा इसी में कंज्यूम हो जाता है. Such nervous habits are not easy to uproot. ये जो नर्वस हैबिट्स हैं, ये जो आपकी मेंटल हैबिट्स हैं, आपकी ये जो मेंटल इश्यूज़ हैं, आर नॉट ईजी टू अपरूट. इनको अपरूट करना, इनको इरेडिकेट करना, ख़त्म करना आसान नहीं है. एंड सो फॉर as I can see cannot be eradicated by anyone but the boy himself. और ये आदत सिर्फ लड़का ही ख़त्म कर सकता है. अब इरेडिकेट एंड अपरूट सिनोनिम्स हैं, इनका मतलब है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, टू निप समथिंग, टू फिनिश समथिंग, टू क्योर समथिंग. तो इनको इरेडिकेट कौन कर सकता है? सिर्फ कंसर्न स्टूडेंट ही कर सकता है. Others can see the difficulty, but the boy must take himself by the collar. बाकी लोग उस डिफ़िकल्टी को एक्सेस तो कर सकते हैं, असेस तो कर सकते हैं, but the boy must take himself by the collar. Take himself by the collar is an idiomatic phrase that means boy must reprimand himself, boy must teach himself, boy must guide himself. उसको खुद को खुद ही बताना है. एंड मेक हिमसेल्फ कल्टिवेटेड अ पोइज एंड काम, और उसको अपने अंदर कल्टिवेट करना है, ग्रो करना है. अ पोइज, एक ऐसी जहनी आसूदगी, एक ऐसा पीस एंड काम, और ऐसी कंफर्ट, एक सुकून दैट स्मॉथर्स द फिजिट्स. फिजिट्स है रेस्टलेसनेस, उसकी बेचैनी, और स्मॉथर्स है उस बेचैनी को सुकून देना, उसको ईज़ देना, उसको रिलैक्स करना.
तो उस बॉय को ही अपने अंदर ऐसी हैबिट्स पैदा करनी होंगी और अपने आप को समझाना होगा सो दैट ही मे गेट ओवर हिज रेस्टलेसनेस. Until he does this, he does not really try. और जब तक वो ये काम नहीं करता तब तक हम उसको उस कैटेगरी में नहीं रखते उन स्टूडेंट्स की who try, work hard and pass their exams. Although he thinks he's trying and often spends more time in the presence of an open book than many of a boy of equal ability who does good work. अब ऐसे स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं? दे स्पेंड मोर टाइम इन फ्रंट ऑफ देयर बुक्स. ज़्यादा वक्त वो स्पेंड कर रहे हैं लेकिन उसका आउटकम जो है वो बहुत कम आ रहा है बिकॉज देयर माइंड इज़ ऑक्यूपाइड इन अदर परसूट्स. अ कॉमन कॉज ऑफ फेलियर इज़ अ मिस्टेकन एम्बिशन. फेलियर की एक कॉमन कॉज, एक जो बेसिक वजह है वो है मिस्टेकन एम्बिशन. एक ऐसा एम्बिशन, एक ऐसा इरादा विच इज़ मिस्टेकन, विच इज़ मिसलीडिंग, जो कि गलत है, जो कि जा रहा है किसी दूसरी समत में. फॉर द बॉय ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, जो यूजली उस बॉय के लिए उसके पेरेंट्स चुनते हैं. उसका एक मिस्टेकन एम्बिशन कि हमारा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं. मोस्ट ऑफन देन आई शुड विश आई फाइंड अ बॉय हु इज़ नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हिज वर्क. अक्सर राइटर को कोई ऐसा लड़का दिखाई देता है जो अपना काम नहीं कर रहा एंड हु इज़ नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन, और ना ही वो उसको किसी डिस्टिंक्शन से, किसी इम्तियाज़ से, किसी जो है एक्स्ट्रा एफर्ट से उसको करना चाह रहा है बिकॉज ही इज़ फॉलोइंग अ डायरेक्शन मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स. क्योंकि वो एक ऐसी संत में चल रहा है विच इज़ मैप्ड आउट, जिसको उसके लिए बनाया है, क्रिएट किया है, ड्रॉ किया है उसके पेरेंट्स ने. दैट रन्स काउंटर टू ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़. और ये वो डायरेक्शन है जो उसके तमाम इंटरेस्ट और उसकी एबिलिटीज़ के अगेंस्ट जाती है. सो रन्स काउंटर इज़ गोइंग अगेंस्ट, गोइंग इन कॉन्ट्रडिक्शन. आई हैव मेड अ नंबर ऑफ वेरी वार्म एनिमीज अमंग द पेरेंट्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. अब राइटर बताता है कि उसने अपने स्टूडेंट्स के बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं उनको अपना एनिमीज़ बना लिया, उनको अपने अगेंस्ट कर लिया है by telling them that I'm certain that the good Lord never intended their son to be a physician or a dentist or an engineer. कि good Lord refer कर रहे हैं God को. That God, he's certain, he's sure that God has not intended their son. कि God का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो उनके बेटे को एक फिजिशियन बनाए, डेंटिस्ट बनाए या फिर इंजीनियर बनाए, और अ बिजनेसमैन और अ बुक इलस्ट्रेटर, या फिर कोई ऐसा इंसान जो बुक को इलस्ट्रेट करता है, बुक को एक्सप्लेन करता है, जैसे उनकी तशरीह करता है. सो इट मे बी अनरीजनेबल फॉर द